Hello students, this is the second lecture of the chemical kinetics. Okay, in this lecture we are discussing about the rate of chemical equation. In previous lecture we are discussed about the rate of reaction. What is the rate of reaction? Rate of reaction is the change in the molar concentration of either reactant or product with respect to time. In terms of disappearance and appearance, rate of disappearance is equals to change in the molar concentration of reactant upon time taken. In terms of appearance, change in the molar concentration of product, appearance of product upon time taken. Okay, now in the rate law of a chemical equation, this is also rate of reaction, but this rate of reaction is given in terms of only reacting species. What is the rate law? The representation of the rate of reaction in terms of concentration of the reactant as determined experimentally is termed as rate law. It is also called a rate expression or rate equation. Okay, let us consider a general reaction AA plus BB is going to CC plus DD. Okay, according to law of mass action rule, this rule is discussed in class 11 chemical equilibrium chapter. Rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting species. Okay, the rate is equals to k into a power a b power b. यहाँ पे k क्या है बेटा? Proportionality constant. This is known as the velocity constant or rate constant. Okay, rate of reaction is also written as in terms of disappearance and appearance. This is so rate of reaction is equals to minus dr by dt लिख सकते हैं बेटा, या लिख सकते हैं dp by dt. माइनस साइन डिसअपियरेंस को इंडिकेट करता है, प्लस साइन अपीयरेंस को इंडिकेट करता है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस माइनस 1 बाई ए डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई बी डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 by c. This is the product, c and d is the product. Okay, and जब ये एक दूसरे के बराबर है तो जब रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है और रेट ऑफ रिएक्शन ये भी है बेटा, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे. ठीक है ना, तो दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है. तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन ओनली प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रूल के अकॉर्डिंग है. ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ठीक, and one thing is important that this rate of reaction for any chemical reaction, rate law expression, this is also termed as a rate law expression, and this rate law expression is always obtained on the basis of experimental analysis. Okay, on the basis of experimental analysis. Now order of reaction. In general, rate law expression can be written as rate law k is equals to a पे power x b पे power y. This is the rate law expression. And one thing important हमने आपको बताया कि बेटा क्या होता है, rate law expression always on the basis of experimental analysis के बेसिस पे बताया जाता है. ठीक है ना, तो rate law expression जब किसी भी रिएक्शन का लिखते हैं तो उसमें जो भी जो भी x a के पावर b के पावर में जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं उनका जो समेसन होता है बेटा, वो उस रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. और अगर उस रिएक्शन में ए के रिस्पेक्ट में ओनली रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाए तो वो एक्स ऑर्डर का होता है. ओनली बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछा जाए तो वो सिर्फ बी के ऑर्डर वाई के ऑर्डर का होता है. ठीक है ना. ओके, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्स प्लस वाई and order of reaction with respect to only A is x and order of reaction with respect to B only y. ठीक है ना, तो A और B के रिस्पेक्ट में x ऑर्डर का है, B के रिस्पेक्ट में y ऑर्डर का. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस y के बराबर होता है. ठीक है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी 0 1
टू और फ्रैक्शन और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता बेटा, मेनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बताता कि इस रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रेट ला एक्सप्रेशन है वो किसके पावर पे, ए के कंसंट्रेशन के कितने पावर पे डिपेंड करता है। ए के कंसंट्रेशन को चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी चेंज हो जाती है, ठीक है, वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक, हाँ, नोट, रेट ला एक्सप्रेशन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली हमने पहले भी आपको बताया। इट कैन नॉट बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते। तो इफ रेट इज इक्वल टू के ए पे पावर 1, दिस इंडिकेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली रिएक्टिंग स्पीसीज ए। ठीक है, तो वही हमने आपको अभी बताया कि किस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए हमको यूनिट, अगर रेट कांस्टेंट के यूनिट हमको निकालना हो, चाहे जीरो ऑर्डर का हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे किसी फ्रैक्शनल ऑर्डर का रिएक्शन हो, तो उसमें जो रेट कांस्टेंट कहाँ से मिलेगा बेटा, ये जो आपको रेट ला एक्सप्रेशन है ना, ये रेट ला एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो ये के की वैल्यू है यही आपका रेट कांस्टेंट है। इसके लिए यूनिट हमको डिटरमाइन करना है, तो हम उसके लिए एक छोटा सा आपको एक्सप्रेशन दिखाते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ए प्लस बी इज गोइंग टू सी प्लस डी टी। तो इसके लिए रेट लिख सकते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रेट ला, यहाँ पे ला लिख सकते हैं आप, रेट ला। ठीक है, रेट ला इज इक्वल टू के ए पे पावर ए बी पे पावर बी। तो रेट ला अगर हम लिखते हैं तो ये होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रूल, के ए पे पावर ए बी पे पावर बी। ठीक है ना, और के की वैल्यू इधर कर ली हमने, रेट इंटू 1/a। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। और ये आपका एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, यानी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए पे पावर ए बी पे पावर बी, यानी टोटल ये दोनों कंसंट्रेशन ही है ना, तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, और ए प्लस बी को एन लिख देते हैं, जहाँ पे एन क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का भी यूनिट होता है मोल पर लीटर पावर एन, मोल पर लीटर पावर 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1, ये 1 है, ये एन है, तो 1 माइनस एन हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिस ऑर्डर का आपको रिएक्शन मिले उसमें आप उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, एन की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपको के का यूनिट पता चल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, जैसे n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है आपके पास, तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, न की वैल्यू 2 रख दीजिए सेकंड ऑर्डर के लिए, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर का भी आपको मिल जाएगा, तो n की वैल्यू फ्रैक्शनल रख दीजिए, आपको यूनिट k का मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे ऑर्डर होता है बेटा, उसी कुछ टाइप का आपका मॉलिक्यूलरिटी होता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड्स साइमल्टेनियसली इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ओके, कहने का मतलब क्या है बेटा, किसी भी रिएक्शन में जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है जिनके कोलिजन से, ठीक है, जिनके कोलिजन, जिस रिएक्टेंट के कोलिजन से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज अ हाइपोथेटिकल वन एंड देयर इज अ सम रिएक्शन विच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड इन्वॉल्व so many reacting species, hence molecularity of the reaction determined on the basis of effective collision। हमने वही बोला बेटा, आपको effective collision जो देते हैं takes place simultaneously more than 3 is rare। यानी अगर हम बात करें molecularity of the reaction, 3 से ज़्यादा आपकी molecularity नहीं होती है। ठीक है ना, यानी 3 से ज़्यादा molecularity नहीं, यानी एक साथ मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल कोलाइड्स
एक दूसरे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी जैसे फॉर एग्जांपल है H2HI इज गोइंग टू H2 + I2, तो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं, 2 हैं, तो M की वैल्यू 2 लिख दिया। अमोनियम नाइट्राइट है N2 + 2H2 इज गोइंग टू M, यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, 1 है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी पे डिफरेंस क्या है बेटा, देखिए ऑर्डर की वैल्यू क्या है, ऑर्डर क्या होता है, इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं, और इट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज गिव्स इफेक्टिव कोलिजन, जो इफेक्टिव कोलिजन देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट है ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बेटा, थियोरेटिकली डिटरमाइंड होता है, ठीक है। ऑर्डर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलरिटी टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या होती है, होल नंबर में होती है। ऑर्डर आपकी 0 हो सकती है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, 0 होगा तो किसी का रिएक्टेंट कोलाइड किए ही नहीं मतलब, ठीक है। इन मल्टी स्टेप रिएक्शन इट इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप, यानी किस 2-3 स्टेप का कोई रिएक्शन है तो जो स्टेप उस रिएक्शन में सबसे स्लो होगा, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑल स्टेप्स आर डिटरमाइंड, सभी स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन की जा सकती है, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक, ओके। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस पे, रेट लॉ एक्सप्रेशन पे, द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO + Cl2 इज गोइंग टू 2NOCl इज डबल when the concentration of Cl2 is doubled and becomes 8 times when the concentration of both NO and Cl2 are doubled. Determine the order of reaction. Okay, order of reaction हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग बेटा पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम, मान लेते हैं कि NO के रिस्पेक्ट में ये x ऑर्डर का है, क्योंकि हमने अभी पहले ही बात किया बेटा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, सॉरी रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो रेट इज इक्वल टू KNO पे पावर x और Cl2 पे पावर y, ठीक है, इसको हमने मान लिया, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल, यानी Cl2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डबल हो जाती है, एंड बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Cl2 आर डबल, यानी पहली बार 2 कंडीशन बता रहा है। फर्स्ट टाइम में जब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है जब Cl2 के कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है, और दूसरी कंडीशन कह रहा कि रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाता है जब दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको डिटरमाइन करना है, तो रेट इज इक्वल टू KNO पे पावर x Cl2 पे पावर y है। तो पहले कंडीशन में क्या कर रहा है कि जब हम Cl2 के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, ठीक है, Cl2 के कंसंट्रेशन को डबल करना है तो रेट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जा रही है। जब दोनों की कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर रहे हैं तो रेट की वैल्यू 8 टाइम्स हो जा रही है, ठीक है ना, 8 टाइम्स हो जा रही है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। तो 2 इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, R से डिवाइड हो जाएगा बेटा, K कैंसिल हो जाएगा। जो कॉमन फैक्टर हैं वो आपके जो कॉमन फैक्टर हैं वो आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका NO पे पावर x 2 Cl2 पे पावर y, NO पे पावर x Cl पे पावर y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर y हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी आई थिंक यहाँ पर ये 2, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 रहेगा 2 के पावर x, ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ पर 2 के पावर x है ना, तो 2 के पावर x और 2 के पावर x, सॉरी यहाँ पे 2 के पावर x नहीं रहेगा, इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे ना,
इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 में NO के पावर x है, Cl2 के पावर y है, तो NO के पावर x 2Cl2 के पावर y, और यहाँ पे इक्वेशन 2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने बेटा, 2 का पावर कॉमन ले लिया, तो कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी, ठीक है ना, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 8r/2r इज इक्वल टू दिस, तो 3 ये है, 2 ये है, इसको डिवाइड करेंगे बेटा 2 के पावर x, 2 के पावर y, और NO के पावर x 2Cl2, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 के पावर x बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 4 जा, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका NO के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो NO के रिस्पेक्ट में, नाइट्रिक ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, Cl2 के रिस्पेक्ट में NO के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का है, Cl2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा देख लो यहाँ पे R, तो रेट ला एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K, NO पे पावर 2, Cl2 पे पावर 2, Cl2 पे पावर 1, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप NCERT से सॉल्व कर सकते हैं। आपको होमवर्क देते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 4.3 4.4 रेट ला एक्सप्रेशन पे है, इसको सॉल्व करिएगा एज अ होमवर्क, ओके। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू।